Hello and welcome back, students, to our YouTube channel Humanities Adda. So, we were discussing in these lecture series, basically, we were doing bricks, beats, and bones, and this will be our lecture 6th. ये 6th लेक्चर होगा आपकी सीरीज का, जिसमें अभी भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर, आप अगर इफ यू हैव वॉच्ड द लेक्चर, वी डिस्कस्ड अबाउट द जस्ट we discussed about craft production, finding about craft production, and we also discussed about identifying centers of production. Now today we have to start with strategies for procuring materials. अब हमें देखना है कि किस तरीके से how the Harappan people they were procuring different materials, because हमें पता है कि जो region था Harappan civilization का, वहां पे सारे materials जो initially आप देखोगे certain areas आपको स्टैब्लिश ही किए गए थे, आपके स्टैब्लिश ही किए गए थे टू प्रोक्योर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. सो वी विल सी how the Harappans they procured different materials for making different arts and crafts. Now, as is obvious, a variety of materials was used for craft production. तो वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा था. अब फॉर एग्जांपल जो क्ले हो गया, तो क्ले वाज लोकली अवेलेबल एंड मेनी सच एज स्टोन, टिम्बर एंड metal had to be procured from outside the alluvial plain. तो कुछ जो आपके ये मटेरियल है, फॉर एग्जांपल यू हैव स्टोन, टिम्बर, मेटल, तो इनको आउटसाइड द alluvial प्लेन से प्रोक्योर करना पड़ रहा था ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम. सो एग्जांपल यहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि दे वर काइंड ऑफ देयर वाज काइंड ऑफ अ ट्रेड, और किस प्रोक्योरमेंट एक तरीके से एक्सचेंज चल रहा है दो साइड्स के बीच में, डिफरेंट एरियाज के बीच में. The terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Now, from the terracotta toy models, हमें ये पता चलता है कि जो बुलॉक था, बुलॉक कार्ट्स थे, वो एक important means of transport होंगे, important means of transporting थे for good means of transport. It was basically an important means of transport for transporting goods and people across land routes. Now riverine routes की अगर हम बात करें, तो riverine routes जो आपके river हैं, उनको river as rivers को भी use किया गया था for transportation along the Indus and its tributaries, as well as coastal routes were probably used. तो coastal routes भी use किए गए हैं, riverine routes भी use किए गए, and land routes were also used. And terracotta model से हमें पता चलता है कि bullock carts were kind of used for transporting people on the land and goods on the land. Now materials from the subcontinent and beyond. अब हम देखेंगे कि subcontinent वाले region में, Indian subcontinent, if we talk about the Indian subcontinent, you should know that Indian subcontinent not only consisted of present day India, but as well you will see that अभी का जो प्रेजेंट है आपका नेपाल वाला रीजन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऑब्वियसली दिस साइड बांग्लादेश, एंड तो ये पूरा एक तरीके से सब कॉन्टिनेंट वाला रीजन हो जाता है. तो अगर हम जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, इफ व्हेन वी आर स्टडिंग हिस्ट्री, सो वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन स्पेसिफिकली, जब हम इंडियन सब एंशिएंट हिस्ट्री बात करें, तो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं, नॉट द प्रेजेंट डे इंडिया. जो भी हमारे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं एंड ऑल, they are basically ignored. Now Harappans जो है, उन्होंने procure किया materials for craft production in various ways, अलग अलग तरीके से. For instance, they established settlements such as Nageshwar and Balakot in areas where shell was available. So Harappans, to procure the shell and shell material, they established settlements in these two sites, in these two areas. फर्स्ट इज नागेश्वर, जिसको हमने देखा था मैप में कि इट इज इन गुजरात, एंड देन बालाकोट जो आपके पाकिस्तान वाले रीजन में, बट दोनों ही कोस्टल साइट है. एंड नागेश्वर एंड बालाकोट दे वर फेमस फॉर द शेल ऑब्जेक्ट्स, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी. अब अदर एग्जांपल, तो एक मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया आपका कि दे वर काइंड ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट. सो यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग, established settlements was the first method or first strategy how they procured metal, any kind of materials. तो आप इसको एक ये बोल सकते हो. नाउ other such sites were Shotogai. Shotogai आपने देखा अफगानिस्तान में, and near the best source of lapis lazuli ये साइट थी. A blue stone, lapis lazuli is a blue stone that was apparently very high value. लोथल को भी इसी तरीके से establish किया जाता है.
which was near sources of carnelian. कार्नेलियन के सोर्स के पास लोथल आपको देखने के लिए मिल जाएगा. लोथल इज इन प्रेजेंट डे गुजरात. बरूच वाले रीजन में आपको कार्नेलियन मिलता है, बट उसके लिए हमने जो साइट, हड़प्पन पीपल ने जो साइट स्टैब्लिश की थी टू प्रोक्योर दिस मटेरियल वाज लोथल. स्टीयरटाइट आप देखते हैं कि कहाँ से ये प्रोक्योर कर रहे हैं, फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात. एंड मेटल स्पेसिफिकली कॉपर जो होगा वो आपके राजस्थान वाले रीजन से देवर प्रोक्योरिंग. अनदर स्ट्रैटेजी आप देखोगे, हमें फर्स्ट स्ट्रैटेजी देख ली, that was of establishing settlements. Establishing settlements में we saw that they established Nageshwar and Malakut specifically for shell and shell objects. Chotogai for lapis lazuli. Then you have Lothal near the source of carnelian. Steatite के लिए इन्होंने राजस्थान and नॉर्थ गुजरात से इसको प्रोक्योर किया था, तो वहां पे आपको साइट्स देखने के लिए मिल जाएगी. एंड मेटल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम राजस्थान, तो मेटल पर्टिकुलरली जो कॉपर है ये राजस्थान से प्रोक्योर कर रहे थे. यू हैव दी खेतरी माइंस ओवर देयर. Now, another strategy अगर हम देखें for procuring raw materials may have been to send expeditions. Expedition send करना मतलब कि particular काम के लिए आप एक travel organize कर रहे हैं. You are traveling for a particular objective, for kind of एक तरीके से आप बोल रहे हो कि यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर द एरिया, तो आप एक्सपेडिशन पे जाते हो. एक्सपेडिशन यहाँ पे हमारे एक रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए भी दे यूज्ड टू गो, द हड़प्पन्स यूज्ड टू गो ऑन एक्सपेडिशन एंड सेंड एक्सपेडिशन टू सच एरियाज सच एज द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान. तो इस रीजन में आप देखोगे जहां पे कॉपर मिल रहा है वहां पे आप देखो चालकोलिथिक साइट्स वर देयर, है ना. तो खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान में दे यूज्ड टू सेंड एक्सपेडिशन. साउथ इंडिया में फॉर गोल्ड they have sent expedition. Now these expeditions established communication with local communities. तो इन expedition का एक outcome निकला कि local communities जो थी इन areas की, for instance in South India is very far away from जो हम Indus Valley civilization का जो extent देखते हैं and region देखते हैं, उससे आप देखो कि South India is very on the other side एक तरीके से. And Karnataka से basically they used to procure gold. So now यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इसका आउटकम क्या होता है एक्सपेडिशन का, कि they established, these expeditions established communication with local community. And how do we know this? How can we substantiate this statement? तो evidence क्या है? एविडेंस ये है कि ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीयरटाइट हो गया, माइक्रोबीट्स हो गए, इन एरियाज में इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ कांटेक्ट रहा है. सो वी आर नॉट सेइंग ऑन लाइक दिस कि हाँ इनका कांटेक्ट हो गया. वी हैव फाउंड एविडेंसेस एज वेल. द आर्कियोलॉजिस्ट दे हैव फाउंड एविडेंसेस एज वेल कि साउथ इंडिया वाले रीजन में, खेतरी वाले रीजन में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, माइक्रोबीट्स मिल रहे हैं. देन देयर इज evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpur culture, with its distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper objects. तो खेतरी एरिया से भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, जिसको आप यहाँ पे जो ये एरिया है इसको हम गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहते हैं, और यहाँ पे आपको नॉन हड़प्पन पॉटरी देखने के लिए मिलेगी. सो दैट मीन्स दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज अनदर कल्चर. एंड कल्चर को हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही डिफाइन कर दिया है कि व्हाट डज द टर्म culture signify in what is the significance of culture in archaeological term. Now it is possible that inhabitants of this region supplied copper to the Harappans. तो ये एक possibility है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉपर देखने के लिए मिल रहा है, तो ये लोग जो है सप्लाई कर रहे होंगे कॉपर हड़प्पन पीपल को. नाउ वी हैव डिस्कस्ड वन एस्पेक्ट. हमने एक जो है इनका प्रोक्योरिंग मटेरियल जो प्रोक्योर कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, उसमें हम देख लिया कि सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड से इन्होंने कैसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया. उसमें फर्स्ट मेथड था कि दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स. सेकंड में आप लिखोगे कि दे यूज्ड टू सेंड एक्सपेडिशन फॉर प्रोक्योरिंग दीज मटेरियल. एक्सपेडिशन के केस में वी हैव टू राइट द एग्जांपल ऑफ खेतरी माइंस. साउथ इंडिया गोल्ड के लिए आप एग्जांपल कोट कर सकते हो. उनके साथ एक तरीके से आप बोलो कि एस्टैब्लिशमेंट लोकल कम्युनिटीज के साथ इनका कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो गया था. एंड हाउ डू वी से दैट, तो आपको यहाँ पे एक तरीके से एविडेंसेस भी मिले हैं. एविडेंसेस मिले हैं कि माइक्रोबीट्स एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इन रीजन्स में मिले हैं. गणेश्वर जोधपुर कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत आप देख लो. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दैट दिस सब टॉपिक. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डू इज कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड. अब हम डिस्टेंट लैंड्स की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कॉन्टिनेंट. रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉपर जो है, कॉपर वाज
also probably brought from Oman. So if I tell you that name two regions from where the Harappans sourced the copper metal. So you can write first in the subcontinent you have Rajasthan, and beyond with the distant land अगर हम दूसरी region की बात करें तो we have Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula. This is Oman. इस region में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ओके तो यहाँ से ये कॉपर ओमानी कॉपर जो है उसको एक तरीके से प्रोक्योर कर रहे थे. तो केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हरप्पन artifacts have traces of nickel suggesting a common origin. How do we know that the copper that has been found in the Harappan artifacts belong to the region of Oman? वहां से लेके आए क्योंकि दोनों में ही traces of nickel मिले हैं हमें. Okay, this is clear. There are other traces of contact as well. For example, जब आप other traces देखिए contact के तो एक distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with thick layer of black clay has been found एट ओमानी साइट्स. तो ओमानी साइट्स पे हमें ये देखने के लिए मिला है कि एक लार्ज हरप्पन जार है वो थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कोटेड है. सच थिंग कोटिंग्स प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स. तो लिक्विड्स को बाहर निकलने से ये कोटिंग्स एक तरीके से प्रिवेंट करती है. अब वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि इन बड़े बड़े जार्स में क्या कैरी किया जा रहा था या फिर क्या सेंड किया जा रहा था, बट हम एक पॉसिबिलिटी है कि जो भी इसके अंदर दे वर काइंड ऑफ पुटिंग इन विद इन दिस जार उससे ही ओमानी कॉपर को एक्सचेंज किया जा रहा था. एक बाटर सिस्टम जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पे अभी करेंसी स्टैब्लिश नहीं हुई है. ओके करेंसी कॉइन्स ये सारी चीजें नहीं है तो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ बाटर. Mesopotamian text datable to the third. अब now we will talk about the Harappan सिविलाइजेशन का जो कॉन्टैक्ट है विद मेसोपोटामिया उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बात करते हैं. उसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे. मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द थर्ड मिलेनियम बीसीई. इस टाइम की जो थर्ड मिलेनियम बीसीई का जो टाइम पीरियड है इस टाइम की जो टेक्स्ट है वो आप देखोगे कि दे रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन. तो मगन के अगर मेंशन कर रहे हैं वहां से कॉपर आ रहा है तो परहैप्स वी कैन से दैट दिस इज अ नेम फॉर ओमान. जो मेसोपोटामियन आप बोल सकते हो कि टर्म्स में ओमान मगन जो है वो ओमान के लिए यूज किया जा रहा था. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स आल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल. तो हियर आल्सो वी कैन से दैट Mesopotamia and Oman also had some kind of trade relations between them. दूसरे आर्कियोलॉजिकल फाइंड सजेस्ट करते हैं और सजेस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स include other archaeological finds suggestive of long distance contact में हमें देखने के लिए मिल रहा है हरप्पन सील्स वेट्स डाइस एंड बीट्स. तो ये सारी चीजें भी हमें मेसोपोटामिया में मिल रही है विद सजेस्ट कि इनका लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंडस वाले रीजन से भी था, इंडस वाली सिविलाइजेशन से भी था और यू कैन से हरप्पन सिविलाइजेशन से भी था. In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contact with regions named Dilmun, probably जिसको प्रेजेंट डे जो बहरेन आइलैंड ऑफ बहरेन है उसके लिए यूज किया जा रहा है, मगन एंड मेलुहा. मेलुहा इज अ रीजन पॉसिबली इसको हरप्पन रीजन का नाम था मेलुहा जो ये इन्होंने नाम दिया है. एंड दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा. मेलुहा से क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर प्रोक्योरिंग कार्नेलियन, लैपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटीज ऑफ वुड. तो वुड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग क्यों कर रहे थे प्रोक्योर? बिकॉज इफ यू नो दैट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिस रीजन में था दैट वाज वेरी एरिड रीजन, तो वहां पे इरिगेशन करना ही इतना मुश्किल था. एंड बिकॉज इट इज एन एरिड रीजन जो है ट्रीज एंड ऑल आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो वुड जो है वो आपको वहां पे नहीं मिलता. तो दैट इज वाई दे वर प्रोक्योरिंग वुड फ्रॉम हरप्पन रीजन. एक मेसोपोटामियन मिथ भी है which myth says of Meluha से associated. May your bird be the Haja bird. May its call be heard in the royal palace. तो ये हाजा बर्ड का मेंशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. सम आर्कियोलॉजिस्ट दे थिंक दैट हाजा बर्ड वाज द नेम ऑफ पिकॉक. Peacock को they were the Mesopotamian people they were calling Haja bird. Now, did it get its name from its call? We do not know. It's likely that communication with Oman, Bahrain or Mesopotamia was by sea. तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं विथ मेसोपोटामियन या फिर आप विथ मेसोपोटामिया या फिर ओमान या फिर बहरीन के साथ वो सी के थ्रू ही था. इट इज likely because land route would have been very एक तरीके से लैंड रूट ये कर सकते हैं बट एक काफी आप देखोगे कि लंबा पड़ जाएगा इनको इस साइड से इधर जाना.
it will be very difficult. तो सी रूट हम एक तरीके से देख सकते हैं कि they were probably using the sea roots. And how do we say that they were using the sea roots? So Mesopotamian texts refer to Meloha as a land of seafarers. एक एविडेंस ये होगा आपके पास, कि आपके पास एविडेंस है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि why we are assuming that the Harappans they were using sea routes for communication with America, Oman, Bahrain और Mesopotamia, because Mesopotamian text mention कर रहे हैं, refer कर रहे हैं मेलुहा को as a land of seafarers. And besides we find depictions of ships and boats on seals. तो seals पे हमें शिप्स एंड बोट्स का डिपिक्शन मिल रहा है. ये आप देखो कि राउंड पर्शियन गल्फ सील है फाउंड इन बहरेन, समटाइम्स कैरी हरप्पन मोटिव्स. इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट्स फॉलोड द हरप्पन स्टैंडर्ड्स. तो ये एक सील की इमेज आपको ध्यान में रखना है. पर्शियन गल्फ की जो ये सील है, जो बहरेन में एक तरीके से बहरेन में मिली है. समटाइम्स इट कैरीज हरप्पन मोटिव्स एज वेल. एंड सिलेंडर सिल आप देखने के लिए आप यहाँ पे देख लो एक cylinder seal का example which is very typical of Mesopotamia, but the humped bull motif on it appears to be derived from the Indus region. So you can see कि humped bull का जो motif है, humped bull was considered as sacred in Harappan civilization, और humped bull जो है हमारे seals पे काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. So we can say that there was a kind of influence on the Mesopotamian region. And यहाँ पे हमें बहरेन में जो सील मिली है, राउंड पर्शियन गल्फ सील मिली है, उस पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हरप्पन मोटिव्स देखने के लिए मिले, एज वेल एज दिलमन वेट्स जो है वो हरप्पन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे. सो दिस इज इट फॉर द 6th लेक्चर. 7th में हम डिस्कस करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, and then we will move on to the next topic, that is ancient authority and the end of civilization. तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे and we will try to understand the topics very thoroughly and nice. Okay, so thank you so much for watching and I hope that you like the video. If you like the video, please do subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Thank you.